So recently, I just started studying about our like mythology, the cosmic realms, about the existence of Earth. तो थोड़ा बहुत पढ़ाई करके जो मुझे ज्ञान मिला है, I'll just try to narrate it in a very short way. Only two things are permanent in this entire universe. One is the supreme power, which has three faces: Shiva, Brahma, Vishnu. Now, there is no beginning and no end of this power. You can call it the three sides of the same coin, not two sides, because they have three faces. One is this power, second is souls, Atma. Now, souls are billions of souls are wandering in the universe. So, ये Vishnu, Shiva, and Brahma और एक है entity, another entity are souls. Now, the job or the responsibility of this entity, the Vishnu and Shiva and Brahma, is to make sure all these souls go and settle down in Vaikunt. अभी डायरेक्ट ये सोल्स को वैकुंठ में ले जा सकते हैं. दे कैन टेक सोल्स एंड डायरेक्टली कीप इट सेटल देम इन वैकुंठ, लेकिन उससे पर्पस सर्व नहीं होगा, बिकॉज अनलेस a soul understands the value of detachment, they will not understand the value of attachment. फिर क्या किया? द प्ले, द कॉस्मिक प्ले, ये जो पूरा ये थिएटर है, दिस अर्थ, दिस वाज क्रिएटेड बाय विष्णु, and it was divided into 4 stages. Satya Yuga, first is Satya Yuga, Dwapar Yuga, Treta Yuga, Kali Yuga. Sorry, Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapar Yuga, Kali Yuga. 4 युग क्यों है? Because 4 parts of a cow. A cow has 4 legs. सत्य युग में a cow has all 4 legs, तो एक युग चला गया. फिर त्रेता युग, लेफ्ट विथ 3 legs. फिर द्वापर युग एंड कलयुग, एंटायर वर्ल्ड विल वैनिश. फिर से रीइंकार्नेशन होके फिर से ये अर्थ बनेगा. सो 4 युग्स विल गो. नाउ देयर इज अ क्रो कॉल्ड काकभूषण हु हैज सीन रामायण 16 times. एवरीथिंग ये जो है ना, एक रीइंकार्नेशन, एक रिसाइकल हो रहा है. सो अभी ये सोल्स को ह्यूमन बॉडी में डाल के अर्थ पे छोड़ दिया, एंड गॉड हैज गिवन ऑल द इंग्रेडिएंट्स, IQ, टू जज व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. अभी सवाल है कि हम लोग गलती क्यों करते हैं? इवन दो वी नो व्हाट वी आर डूइंग इज अ क्राइम, फिर गलती क्यों करते हैं? दैट्स बिकॉज along with the IQ to distinguish what is right and what is wrong, God has also given us free will of lust, desire, greed. अभी हमारे ऊपर है कि हम खाना बनाने के लिए कौन सा इंग्रेडिएंट यूज करेंगे. इफ यू आर यूजिंग आवर गुड साइड, वी आर गोइंग टुवर्ड्स मोक्ष. इफ यू आर यूजिंग आवर बैड साइड लाइक लस्ट, ग्रीड, तो हम लोग मोक्ष के लिए और दिन लगेगा. Every person has a soul inside his or her body. That soul can be an old soul or new soul. Now, how to distinguish between old soul and new soul? कहा जाता है, it's not my say, कि जो लोग चोरी करते हैं, क्राइम करते हैं, उनको ये दुनियादारी का लालच उनको बहुत अच्छा लगता है. So they are new souls. And people who are more into wisdom, knowledge, वो लोग क्या है, बहुत बार इंसान के रूप में बॉडी में आ चुका है. सो स्लोली दे आर मैच्योरिंग, दे आर एजिंग, इसलिए उनको द नेक्स्ट लेवल ऑफ व्हाट डू यू कॉल द एवोल्यूशन उनको अच्छा लगता है. सो दे विल बी मोर टुवर्ड्स फिलोसॉफिकल माइंड. उनको ये पैसा, धन दौलत उतना अच्छा नहीं लगेगा. दे लव नेचर, दे लव म्यूजिक, दे लव किड्स, दे लव फ्लावर्स, दे लव टू टॉक अबाउट गुड थिंग्स. और उनके साथ they'll carry some vibes, ऐसा vibes लेके जाएंगे कि people will open up with their problems, even though you're a stranger. If you're carrying that vibes, people will open up, so that कहीं ना कहीं 5 मिनट के लिए आप बात करोगे तो you'll help them, आप उनको थोड़ा अच्छा फील कराओगे. So this is how that entire journey is made. So a soul has to understand the value of detachment, तभी जाके उसको attachment पता चलेगा. So इस दुनिया में you have to go through pain. Unless and until you go through pain, you'll not value the power of what do you call good wellness, good well-being, कि मैं बहुत खुश हूँ. क्योंकि वैकुंठ में अगर आप एक बार चले जाओगे तो वहां पे
There is no pain, no grief, no sad, no sorrow, no sickness, nothing. अब eternal time पे वहीं पे रहोगे. So that should not become boring. To make sure that should not become boring, on earth you have to go through human life and evolution of your soul. So that is the ultimate objective. विष्णु सारे souls को वैकुंठ में लेके जाएगा, लेकिन they have to go through that human life of evolution through earth. बहुत कुछ है इसके अंदर. लाइक डायरेक्टली यू आर नॉट बॉर्न एज अ ह्यूमन, यू आर बॉर्न लाइक एज एन एनिमल. फिर कुछ कहा हुआ था 84 बिलियन मिलियन लाइफ जीने के बाद तब आपको ह्यूमन लाइफ में आप आते हो. फाइन, दिस इज द एंटायर जर्नी. 4 युगास. अभी 4 युगास में गॉड हैज टू ऑल्सो डू अ रोल प्ले. उनको भी एक प्ले करना है. अभी क्या प्ले करना है अभी सोच रहा है विष्णु. ही इज राइटिंग द स्क्रिप्ट. फाइन, चलो. वी हैव टू शो ह्यूमंस कि क्या अच्छा है क्या बुरा है. बाकी उनके ऊपर, दे हैव द फ्री विल टू डू वॉट एवर दे वॉन्ट. एक बार क्या हुआ, देयर आर 2 गेटकीपर्स ऑफ वैकुंठ, जया विजया. एल्डर ब्रदर इज जया, यंगर ब्रदर इज विजया. दोनों वैकुंठ में गेट कीपिंग कर रहे हैं. डिवोशन है उनका, विष्णु को सर्व कर रहे हैं. Kumarans, there are 4 Kumarans. Kumarans means like 4 people of enlightenment, high enlightenment, like ऋषि मुनिस जो इनको बहुत नॉलेज है. they are wandering around the universe. Now उनका नॉलेज इतना है, they don't look like of their age, they look like small kids. So once these 4 Kumarans का एक स्टोरी अलग है, तो वो भी मतलब इस छोटे वीडियो में नहीं होगा. I'll explain that. मैं भी थोड़ा स्टडी कर रहा हूँ. So Kumarans एक बार क्या हुआ, they went to Vaikuntha to meet Vishnu. अभी जया विजया रोक दिया, बोला यू कैनॉट मीट हिम, अभी ही इज बिजी नाउ. ये कुमारंस बहुत कोशिश किया, बोला कि ही इज योर गॉड, ही इज ऑल्सो आवर गॉड, मिलने दो. दे डिडंट अलाउ. तो कुमारंस ने श्राप दे दिया कि हमें वंचित किया है हमारे देवता से मिलने के लिए, आपको भी इसका पश्चाताप होगा. दे केम बैक टू अर्थ. नाउ जया विजया आउट ऑफ देयर ईगो डिडंट अलाउ कुमारंस, बट they realized, they started crying. Vishnu is watching everything because ये उसी का लीला है. He is watching everything. Now Vishnu, he has the power. वो क्या कर सकता था, वो ये जो श्राप है उसको मिटा सकता था. लेकिन अगर श्राप को मिटा दिया तो he'll be like damaging or altering his own rules. The rules he has set, karma, dharma, ये खुद का rule God will never, like what you call, alter with their power. So he told Jaya Vijaya, I am giving you 2 options. Option number 1, you will go to earth, settle down, 7 lives, 7 जन्मों तक तुम मेरा नाम करोगे, विष्णु 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 करोगे. 7 जन्मों के बाद जब मोक्ष प्राप्त होगा, वैकुंठ के गेटकीपर बन के फिर वैकुंठ की रक्षा करो. सेकेंड ऑप्शन, आई विल गिव यू 3 lives. 3 लाइफ में you will be my villain. You will hate me, you will like curse me, you cannot even like tolerate Vishnu. अभी ये 3 लाइफ बहुत मुश्किल और कठोर कठिन तपस्या में जाएगा. You have to choose 7 lives or 3 lives. जया विजया, they are like 7 lives, तो इतना दिन हाँ प्रभु से कैसे दूर रहूंगा, हमें 3 जिंदगी दे दो, give us 3 lives. 3 जिंदगी के बाद हम जल्दी वैकुंठ वापस आ जाएंगे. Without even giving a second thought, they agreed to 3 lives. Now Vishnu is like, सोच लो फिर से, this will be a very very like बहुत कठिन रस मार्ग है. They are like, we are okay with that. तथास्तु. Then started the play. The entire theater start हो गया. सत्य युग में जया विजया हिरण्यकश्यप और हिरण्यकाशिपु बन के आए राक्षस. हिरण्यकश्यप वेरी पावरफुल डीमन जो 10,000 साल इट सीम्स तपस्या करके ब्रह्मा से वरदान लिया था कि ना कोई दिन में, ना रात में, ना घर के अंदर, ना घर के बाहर, ना इंसान, ना जानवर मुझे मार सकता है. हिरण्यकाशिपु, हिज यंगर ब्रदर, वाज आल्सो सिमिलरली पावरफुल. और जब उनका पाप का घड़ा बहुत बढ़ गया, विष्णु सेंट प्रहलाद, भक्त प्रहलाद को भी मारने का कोशिश किया, हिज ओन फादर. ही कुड. अभी ये थिएटर में क्या हो रहा है, बाकी दुनिया में और भी इंसान है, दे आर वॉचिंग इट. तो उनको ये दिखाया जा रहा है कि जितना भी पाप बढ़ जाए,
सत्य और अच्छाई का ही लास्ट में जीत होता है। सो विष्णु का वराह अवतार आ गया, हिरण्यकाशिपु को वध कर दिया। छोटा भाई विजया इज रिलीव्ड ऑफ हिज फर्स्ट लाइफ। फिर नरसिंह अवतार आया बाद में, हिरण्यकाशिपु को रिलीज कर दिया है, वध कर दिया। फाइन, सत्य युग में फर्स्ट लाइफ ऑफ जया विजया, उनका कर्स चला गया। अब जैसे कर्स एक बार चला गया, पावर भी थोड़ा कम हो गया। सेकेंड सत्य युग द्वापर युग में जया विजया रावण और कुंभकर्ण बन के आ गए। नाउ इन द फर्स्ट युग विष्णु ने अपना रुद्र अवतार, नरसिम्हा अवतार दिखाया। सो सिमिलरली सेकेंड वर्षन में एक मर्यादा पुरुषोत्तम इंसान बन के राम के रूप में आया। नाउ ही कैनॉट विन रावणा विथ हिज ओन पावर। सो अनदर पार्ट ऑफ द theater is story is he was blessed with a, what do you call, like half man half monkey god Hanuman with immense power who will help him to achieve the goal. Now यहाँ से हनुमान का एक अलग कहानी शुरू होता है, like that's a different part of the story. तो हनुमान के अंदर अभी मैं जाऊंगा तो it's a very intense, like नव व्याकरण, he is the most literate, like मतलब knowledgeable, what do you call, in his times. जब फर्स्ट टाइम राम और हनुमान मिले थे ना, राम ने वर्णना किया है कि when he spoke to me he used the exact grammatical sentence and I was so impressed and his tone was exactly the perfect, like ना बहुत ऊंचे आवाज में ना नीचे आवाज में, एकदम with full confidence he spoke to me, and that showed that his devotion towards himself or whatever he is doing, he is a pure soul by heart. So राम और हनुमान का वहां पे मिलन हुआ, ठीक है। तो बट आई एम नॉट जंपिंग इनटू हनुमान स्टोरी राइट नाउ, हनुमान के बारे में अलग से बहुत कुछ है। सो हनुमान राम सेकेंड स्टोरी, लाइक सेकेंड पार्ट ऑफ द प्ले, रावण और कुंभकर्ण चला गया। फिर जय विजय का थर्ड लाइफ बचा है। थर्ड लाइफ में मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। फिर विष्णु कृष्ण के अवतार में आए और कौरवों का लास्ट रीइंकार्नेशन ऑन अर्थ, कौरवज में शिशुपाला और दंतकरवा के रूप में वो लोग आए। फिर कृष्ण के हाथों उनका वध हुआ, दे गॉट रिलीव्ड ऑफ देयर कार्मिक डेप्ट्स एंड दे वेंट टू वैकुंठ। अभी ये जो एंटायर प्ले हुआ उसमें से हमारे जैसे आम इंसान, वी सॉ द एंटायर प्ले एंड वी हैड टू टेक ओनली वन मैसेज कि बुराई जितना भी आगे बढ़ जाए, एट द एंड ऑफ द डे अच्छाई का ही जीत होता है। हो गया त्रेता युग खत्म, अभी कलयुग है। अभी कलयुग में कल के अवतार बन के आएंगे टू एंड द डीमंस ऑफ द वर्ल्ड एंड अगेन रीइंकार्नेशन होगा। काफी सवाल आते हैं कि सत्य युग, द्वापर युग, त्रेता युग में भगवान दिख जाते थे, अभी क्यों नहीं दिखते हैं? Why is it like this कि सुबह उठ के हम लोग आसमान में क्यों नहीं देख रहे? अच्छा वहां पे श्री राम है, प्रणाम करके आते, यहाँ पे शिव जी प्रणाम करके आते, अभी नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? पहले जमाने में दिखते थे। ऑल वी नो इज थ्रू बुक्स, माइथोलॉजिकल बुक्स, ठीक है, जो वेद है, उपनिषद है, कुरान, पुराण से, गीता है, हम लोग उसमें ज्ञान प्राप्त हुआ है। लेकिन अभी फिजिकली हम लोग क्यों नहीं देख पाते? बिकॉज दिस इज द फाइनल टेस्टिमनी ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। अगर सुबह सुबह उठ के शिव जी के दर्शन हो गए आसमान में, तो भक्ति से ज्यादा डर बैठेगा इंसान में कि अच्छा भगवान दिख रहा है तो मुझे अच्छा इंसान बनना है, नहीं तो पाप लगेगा। बट द रूल ऑफ कलयुग इज, भगवान तुम्हें डायरेक्ट आंखों के सामने नहीं दिखेंगे कि कोई रिपोर्टर जाके फिर टीवी में टेलीकास्ट कर दिया, हम लोग इंटरनेट में देख लिया, ऐसा नहीं है। यू हैव टू फील गॉड विद इन योर सेल्फ। दैट इज योर फाइनल टेस्ट ऑफ योर प्रेजेंस। भगवान दिखते हैं, कैसे दिखते हैं? आप रास्ते पे जा रहे हो, एक बस आके आपको मारने वाला है, अचानक कोई आपको धक्का देके बचा दिया, पता भी नहीं चला, बस चला गया। बाय द टाइम यू वांट टू टर्न बैक एंड वांट टू थैंक दैट पर्सन, ही इज नॉट देयर, एज अ मिरेकल। पूरे जिंदगी में इफ अ पर्सन इज अलाइव फॉर 70 to 80 years, शायद हार्डली जिंदगी में 2 या 3 मिरेकल होंगे, उससे भी कम हो सकता है, एक भी हो सकता है। सो थ्रू दैट मिरेकल गॉड विल कम टू यू। और नो वन कैन डिनाई कि किसी के लाइफ में मिरेकल हुआ ही नहीं है, हुआ है। So through miracle, God will come. God will not come in their physical form, physical presence, and show that yes, I am there.
मतलब डर से भक्ति नहीं, भक्ति अंदर अपने सेल्फ कॉन्शियसनेस से होता है। सो कलयुग खत्म होगा, फिर से सत्ययुग शुरू होगा, एंड दिस लूप विल कंटिन्यू एवर एंड आफ्टर। सो इट सेज कि इस जन्म में मैं क्या कर रहा हूं, मेरे अंदर जो सोल है, आफ्टर आई एम डेड, जब मैं ये शरीर छोड़ दूंगा, मेरे जो कर्म है वो कर्म के अनुसार मुझे अगला जन्म प्राप्त होगा। सो वेदर आई एम गोना गेट अ वंडरफुल लाइफ इन माय नेक्स्ट लाइफ, और अगर मेरा जो मतलब whatever was the message that I had to deliver or the work that I had on this earth खत्म हो गया, तो मैं इंसान बन के पैदा ही नहीं होऊंगा, फिर डायरेक्ट मैं वैकुंठ चला जाऊंगा। So there are so many, you know, like logical reasons or understandings. This is not a small concept जो मैं बता रहा हूँ, it's a very very tiny thing. इसका बहुत सारा variations है जो काफी like philosophers, ऋषि मुनि, काफी लोगों ने explore किया है, and this is a study जो जिंदगी भर आप कर सकते हो। This has no end. The more you study, the more you learn. It's all about understanding yourself. Your war is with yourself. अब इतना हम लोग पढ़ते हैं, कोई बुक पढ़ा, we get very motivated, but the motivation stays only for some time. फिर हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं या भूल जाते हैं, because we are human beings, we are not God. हमारे अंदर उतना पावर नहीं है, मिस्टिक पावर नहीं है to carry it for our entire life. अगर मिस्टिक पावर आ गया, so that means we are directly blessed by God. No one can, harm us. So the only message, like अभी जो कलयुग है, God is like, I'm watching everything. It doesn't mean कि मैं तुम्हारे साइड में नहीं हूँ, सत्य युग में मैं दिखा नहीं हूँ, राम के रूप में नहीं हूँ, कृष्णा के रूप में नहीं हूँ, विष्णु के रूप में नहीं हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं हूँ, मैं हर जगह हूँ। I mean everything, because every small insect is my creation. तुम ढूंढो, तुम्हें मिलेगा, उससे पहले खुद को ढूंढो, खुद को मिले, खुद को पहचान पाओगे। That's it. That's the entire message. So the entire cycle of Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapar Yuga, Kali Yuga is this entire revolving around this entire story कि souls को विष्णु through this earth लेके वैकुंठ में प्रवेश करना है। That's it. Namaste. Thank you.